परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। Father, we come before you in the name of our Lord Jesus. पिता, हम कहते हैं कि हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से भर दें ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। Lord, we pray, fill us with your wisdom and understanding that we can understand your word. और केवल परमेश्वर जो लिखित अक्षर है हम वहाँ पर ना रुकें, पर उसके पीछे जो आत्मा है और आपका जो हृदय है प्रभु उसको समझ सकें। And Lord, that we would not just stop at the written word, but we would understand your spirit behind that written word. Okay, because Lord, your word says that letter kills but spirit gives life. प्रभु आपका वचन कहता है अक्षर मारता है पर आत्मा जीवन देता We है. want to experience and encounter the very life behind that scripture. उस वचन के पीछे का जो वो आत्मा है उसका हम अनुभव करना चाहते हैं. प्रभु, हम एक छोटे बच्चे की तरह आपके पास आते हैं, हमें Lord. अपने वचन से अपनी आत्मा से सिखाएं। We come before you like a little child. Teach us from your word. Teach us through your spirit. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. All right. Okay. Okay. सिस्टर अलका, आई थिंक जो मुझे पता है वहाँ पे गुमला में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, मगर जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, वो बहुत अभी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि हज़ारों लोग जो वहाँ पे वो लोगों के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आप लोग वहाँ पे रुक पाएंगे. Many people are coming from outside of Gumla, and the organizers are making arrangements that people coming from outside can stay there. Okay. All right. हमने 8 चैप्टर्स कर लिए हैं एक्ट्स के, and that was amazing. We have And we completed. went verse by verse. और जैसा आप लोग अब सीखे हैं, मुझे लगता है आप अच्छे से बहुत सारे भाई बहनों को सिखा सकते हैं. We have completed 8 chapters of the book of Acts, and as all you have learned, I believe you can teach many others. Okay. All right. Let's go to Acts 9. We'll start this new chapter and let's read verses 1 and 2. हम प्रेरितों के काम 9 में जाते हैं, उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं. Okay. शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. ओके, हमने एक्ट्स में पढ़ा था कि कैसे परसिक्यूशन हुआ, अगर आपको याद है, और जो यरूशलेम में जो कलीसिया थी वो तितर बितर हो गई और वो जुडिया और सामरिया और अलग अलग क्षेत्रों में वो, जैसे हमने पढ़ा था कि एक किसान बीज को छितराता है, वो वैसे करके फैल गए. So we had learned how when the persecution started, the church, the disciples got scattered across Judea, Samaria, and all the different places like a farmer scatters seed. ओके. सो हम देखते हैं उसके बाद पवित्र आत्मा ने जो फोकस है पूरा कहानी का, एक्ट्स का, वो मोड़ दिया था समरिया की तरफ. तो हम लोग जेरूशलेम में जो चल रहा था, अब वहाँ से हट के हमने सामरिया में देखा, क्योंकि फिलिपुस वहाँ से सामरिया गया. तो सामरिया के बारे में हमने पढ़ा, क्या हुआ, चिन्ह चमत्कार हुए, शिमोन जादूगर के बारे में पढ़ा. अब वापस से पवित्र आत्मा फोकस को जेरूशलेम में ले आया है. And we saw how the focus shifted from Jerusalem to Samaria, and what happened in Samaria when Philip went there as an evangelist, and we saw about Simon the sorcerer, and now again the Holy Spirit is bringing the focus back to Jerusalem. Okay, let's see what is happening in Jerusalem. अब देखते हैं यरूशलेम में क्या हो रहा है. जेरूशलेम में फिर से we see that Saul, जो सॉल है, जो शाऊल हिंदी में लिखा है, वो उस नफरत से भरा हुआ है. We see Saul is filled with hatred. Okay, now if you see in English, it says still breathing threats and murder. How can you breathe threat and murder? धमकाना और घात करना या No, हत्या I mean, करना. like, I want you to translate literally. Yeah, so How can you breathe
threats and murder. कैसे वो सांसें ले सकता है धमकाने से भरी Uh, और when I हत्या से was भरी? checking this, it's a Greek idiom. ये एक यूनानी इडियम है या कहावत Okay, है. it means when a man's very breath is filled with murderous intent. It was used for those murderers who were even their breath was filled with that intense rage to commit murder. ये हत्यारों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो जिनकी सांसों में नफरत और हत्या करना भरा हुआ है. Okay, now हम देख सकते हैं कि साउल जो है, सॉल जो है, he doesn't dislike church. There are many people who dislike church. They're like, I don't like this church. I don't like these Christians. So कई लोग हैं he's जो- not dislike. कई लोग हैं जो मसीहों को या कलीसिया को पसंद नहीं करते, पर शाऊल ऐसा नहीं है. वो He is नापसंद नहीं करता, breathing threats and murder. लेकिन वो हत्या और नफरत से भरा हुआ है कलीसिया को लेके. Okay, he's breathing threats and murder. Still, why does it say still? Still, यानी अब तक इतना परसिक्यूशन हो चुका है, बड़ा परसिक्यूशन फैल चुका है. हम देखते हैं स्टीफन को मार दिया गया है, बिलीवर्स छितर बितर हो चुके हैं, मगर अगर आप देख रहे हो इस व्यक्ति का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ. ही इज स्टिल ब्रीदिंग थ्रेट्स एंड मर्डर. बाइबल कहती है अब तक वो भरा हुआ है उन धमकाने वाली बातों से, मृत्यु करने वाली बातों से. देयर इज सो मच परसिक्यूशन अगेंस्ट द चर्च, द बिलीवर्स आर स्कैटर्ड, येट ही इज फिल्ड विद हेट्रेड अगेंस्ट देम. Okay, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. प्रभु के चेलों के खिलाफ है वो अब तक. Okay, let थोड़ा सॉल की आइडेंटिटी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं. सॉल कौन है? सी अबाउट हिज आइडेंटिटी. हु सबसे पहले हम बाद में मैं आपको इसको एक्ट्स में दिखाऊंगा जब वो अपनी गवाही देता है. सॉल एक जेलस फैरिसी है. दो सेक्ट होते थे बेसिकली, फैरिसी और सैडुसी, फरीसी और सदूसी. पौलुस जो था, जो पहले सॉल था, वो एक फरीसी था. So Paul, who was earlier Saul, was a Pharisee. He was a jealous Pharisee. ओके और मैंने आपको बताया था कि वो गमेलियल जो एक वहाँ का बेस्ट टीचर था, टॉप टीचर था, उसके अंडर उसने पढ़ाई करी. And he studied under Gamaliel, the best teacher, the top teacher of the Jews. ओके और बेंजामिन के ट्राइब से वो था. He's from the tribe of Benjamin. ओके डिवोटेड टू द लॉ एंड ट्रेडिशन ऑफ हिज फादर्स. अपने पितरों के, अपने बाप दादाओं के जो रीति रिवाज थे उनके प्रति वो समर्पित था. ओके तो अगर आप देखें तो वो काफ़ी रिस्पेक्टेड था अपनी कम्युनिटी में, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स. If we see, he was greatly respected among his people. वो सबसे अच्छे शिष्यों में से रहा. नाउ इफ वी अंडरस्टैंड सॉल्स पर्सपेक्टिव, अगर हम उसका दृष्टिकोण समझें तो उसके दृष्टिकोण से वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उनको वो एक गलत शिक्षा, एक झूठी शिक्षा वाला कल्ट मानता है. और वो मानता है कि ये जो यहूदियों की जो शिक्षा है ये उसके अंदर करप्शन लेके आ रहे हैं. From his perspective, he's serving the Lord because he believes that the disciples of Lord Jesus, the apostles, they are bringing a wrong teaching in the tradition of Jews. Rinku Roy, in FOLJ Church, how much it takes to entry? Please don't ask questions like this, Rinku. I don't know who you are. Okay. FOLJ Church में ना आज तक कभी किसी से पैसा लिया एंट्री का, ना कभी लिया जाएगा. Neither have In we. fact, we have free buses for people to come. We give free food. हम लोग 40,000 लोगों को महीने में बेस्ट खाना खिलाते हैं मुफ्त में. सो प्लीज़ ऐसे ये चीज़ें यहाँ पे ना लिखें. ओके प्लीज़ डोंट राइट दीज थिंग्स. We give free bus service to people for pickup. We feed more than 40,000 people every month for free. We give them best food. Okay. Okay. So we understand that Saul is a very devoted Jew. हम समझते हैं कि शाऊल एक बहुत ही भक्ति करने वाला यहूदी था. Okay. Was Paul predestined to be a servant of God? Yes, we are gonna look at that. हम देखेंगे इस बारे में. Okay. अब हम क्या देख रहे हैं? Now Saul, he went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus. शाऊल महायाजक के पास गया और उससे चिट्ठियां मांगी दमिश्क के मंदिरों के लिए, आराधनालयों के लिए. ओके सो सबसे पहले अब आपको समझना पड़ेगा कि जो हाई प्रीस्ट होते थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि दे वर द हेड ऑफ दे वर द हेड ऑफ सैनहेड्रिन, ज्यूइश काउंसिल. महायाजक जो थे वो सनहेड्रिन के, जो यहूदी काउंसिल था उसके सर थे, उसके अगुए थे. ओके नाउ
अंडर द रोमन रूल जो सैनहीड्रिन लोग थे, दे वर गिवन अथॉरिटी ओवर ज्यूइश कम्युनिटीज. रोमी सत्ता में सनहेड्रिन को यहूदी अधिकारियों के ऊपर अधिकार दिया गया था. ओके और जो वो कह रहा है ये लेटर, दीज लेटर वर लाइक आज के समय में जैसे पुलिस वारंट निकालती है कि तो जब कोर्ट एक वारंट दे देता है पुलिस को, तो पुलिस के पास एक लीगल अधिकार होता है किसी का घर छानबीन करने का या किसी इंस्टीट्यूशन का छानबीन करने का. मगर जब तक उनके पास वारंट नहीं है, वारंट क्या एक लेटर होता है, जब तक वो लेटर नहीं है वो किसी के घर के अंदर घुस के छानबीन नहीं कर सकते. So the letter he is asking them to give him is like a warrant that a court gives to the police so that they can go and do search in someone's house. Okay. Jesus baptized when he was a kid. Can you give me a scripture? When Jesus was baptized as a kid? यीशु का कहाँ बपतिस्मा हुआ बच्चा होते हुए, क्या आप वचन से दिखा सकते हैं? Okay. All right. So हम लोग क्या देख रहे हैं? That he is asking for a kind of warrant, जो आज के समय में हम वारंट बोलेंगे, वो ऐसा लेटर मांग रहा है हाई प्रीस्ट से जो उसको ये अधिकार दे कि वो क्या करे, डेमस्कस जा सके, डेमस्कस के सिनेगॉग में जा सके और जो यीशु को मानने वाले हैं उनको पकड़ के घसीट के ला सके. We see he's asking for a letter like a warrant that he could go to Damascus and he can arrest all those who believe in Jesus. Okay. Now मैं आगे आपको डेमस्कस बताऊंगा. वो बहुत पास नहीं था, 190 माइल दूर था, मतलब 230 और 40 किलोमीटर्स दूर था जेरूसलम से. एक हफ्ते लगते थे यरूशलेम से डेमस्कस जाने के लिए. Damascus wasn't close to them, it was about 230 or 70 kilometers away from them. It would take a week for them to travel. Okay, जैसे मैंने आपको बताया, what Saul is asking is the ancient equivalent of what we will today call a legal notice or a legal warrant. शाउल एक लीगल वारंट या लीगल नोटिस का जो उस समय का कागज था वो मांग रहा है. ओके और जो डेमस्कस है वो एक बड़ा शहर था उस समय में. Damascus was a big city at the time. और एक हफ्ते जैसे मैंने आपको कहा वहाँ लगेंगे. Like और जैसे यहाँ लिखा है so that he if found any who were off the way. तो अगर उसको कोई मिलता जो उस रास्ते पर चलने वाले लोग थे, उस पंथ पर. Any who were off the way. That is what believers were called Amen. in the beginning, the way. And I love this name. जो उस मार्ग के लोग थे और मुझे प्यार है इस नाम से. I love this name. We are people of the way. हम जो सच्चा मार्ग है उसके लोग हैं. यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में I am the way. We are people of the way. यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ. We are the, हम उस मार्ग के लोग हैं. Okay, all right. So coming back, why does he want letters from high priest? वो high priest से चिट्ठी क्यों मांग रहा है? क्योंकि अगर उसे high priest की चिट्ठी मिल गई तो उसको ये लीगल एक तरह से अधिकार मिल जाएगा कि वो दमस्कस का जो सिनेगॉग है वो भी उसकी बात मानेगा क्योंकि वो हाई प्रीस्ट से एक चिट्ठी लेकर आया है. If he gets a letter from the high priest, then the synagogues of Damascus will also listen to him because he has a letter from the high priest. Okay, all right, let's go forward. परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? We see a normal pattern. Bible में जब हम देखते हैं God calling Abraham, 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 Moses, Moses. Okay? हम एक पैटर्न देखते हैं. परमेश्वर ने अब्राहम कहा, मूसा कहा. Okay? और यहाँ पे परमेश्वर ने उसका नाम लेकर उसको बुलाया, Saul, Saul, why are you persecuting me? And here God called his name and said, Shaul, Shaul, तू मुझे क्यों सताता है? Okay, and आगे जब हम इसको पढ़ते हैं, आप इसको Acts 26 में पढ़ सकते हैं 14वीं आयत में. तो पॉल बोलता है कि जो आवाज़ जिसने मुझसे बात करी वो हिब्रू में बोला, उसने मुझसे हिब्रू इब्रानी भाषा में बात करी.
And in Acts 26, Paul says, the voice that spoke to me spoke in Hebrew. आप हिंदी में पढ़ सकते हैं एक बार इसे? 14. या 26:14. यहाँ लिखा है, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है. ठीक है, इब्रानी भाषा में. ओके, इब्रानी भाषा में उसने सुना. दैट वाज हिज नेटिव टंग. ओके, दैट वाज हिज नेटिव टंग, मातृभाषा. ऑलराइट. सो क्या बोला शॉल से जो आवाज आई? What did the voice say और to दूसरी Saul? बात बोला, अ लाइट शोन अराउंड मी. उसके इर्द गिर्द एक प्रकाश चमका. ओके, और बाद में पॉल ये बताता है कि जो लाइट चमकी वो दिन का समय था. And later on it tells that it was during the daytime when this happened, when the light shone. ओके, नाउ इमेजिन करिए, दिन में अगर आप बाहर दिन में जाएं और आप टॉर्च जलाएं तो क्या होगा? आपको टॉर्च दिखाई देगी? Now imagine if you go out, if you step out during the day and you switch on a torch, will you even see the light of the टॉर्च torch? की लाइट दिखाई नहीं देती. You will not see the light of the और torch. वही टॉर्च अंधेरे में अगर आप किसी की आंख में चमकाए तो उसकी आंख में चमक जाएगा. And the same torch at night, if you put in someone's eyes, their और eyes. नून का समय जब सूरज बिल्कुल टॉप पे होता है, मतलब अपने टॉप पे चमक रहा होता है. So this is the time and at noon when the sun is at its highest, at its peak. ओके, इस समय में एक लाइट, जब सूरज की लाइट टॉप पे है, उस टाइम में एक ऐसी लाइट चमकी, तो आप सोचो उसका मैग्नीट्यूड, वो कितनी ज्यादा चमकीली रोशनी होगी जो दिन के समय में पौलुस के ऊपर चमकी. At such a time when the sun is at its peak, there was such a light that shone upon Paul. Now you can imagine what intensity of light that must be. ओके, क्योंकि बहुत सारे स्केप्टिक्स हैं जो पहले कहते थे, अरे पॉल में जो लाइट चमकी ये कोई तारा टूटा होगा या एक फ्लैश ऑफ लाइट आई होगी. इट्स नॉट अ फ्लैश ऑफ लाइट, इट हैपेंड इन द नून टाइम. Because many skeptics used to say it was a star that shone on him or some light that fell. लेकिन वो दिन दोपहरी में हुआ. ओके, it was the visible manifestation of God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकट सबूत था वो. ओके, आप एक बार एक्ट्स 22:6 पढ़ दीजिए. प्रेरितों का कार्य 22:6 हम हिंदी में देखते हैं इसको. 6वीं आयत में, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी. दोपहर के लगभग एक बड़ी ज्योति, एंड इंग्लिश बाइबल में एग्जैक्टली इट्स अ नून डे, यानी बिल्कुल दोपहर में जब सूरज बिल्कुल टॉप में होता है. It's at noon, English says, when the sun is at its peak. Okay, so we see here that it was the glory of a resurrected Savior, Lord Jesus Christ. हम देखते हैं वो पुनरुत्थानित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा थी. Okay, all right, Sister Foodalicious, did you find the answer? That was in Acts 22:6. All right, okay. एंड क्या बोला? ये लाइट का जो इफेक्ट था इतना स्ट्रॉन्ग था that he fell to the ground. The effect of this light was so great कि वो जमीन पर गिर गया. He fell to the ground. This was not a normal light. ये कोई सामान्य लाइट नहीं थी. Okay, and then the question. और फिर ये सबसे important question. The most important question. Saul, Saul, why are you persecuting me? शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? सोचो, मैं चाहता हूं आप इस बात को सोचो. I want you to Jesus did not ask him, Saul, Saul, why are you persecuting my followers? यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा, शाऊल तू मेरे शिष्यों को, मेरे अनुयायियों को क्यों सता रहा है? He did not say, Saul, Saul, why are you persecuting my church? उसने ये भी नहीं कहा कि शाऊल तू मेरी कलीसिया को क्यों सता रहा है? Okay, क्योंकि साउल ने कभी यीशु मसीह को नहीं सताया था. Because Saul had never persecuted the Lord Jesus. वो यीशु की कलीसिया को सता रहा था. He was persecuting the church of the Lord Jesus. Okay, but this is the beauty of Christ, that he and his body have been made one. They have been joined together. लेकिन ये खूबसूरती है मसीह की कि मसीह और उसकी देह एक हो चुके हैं, वो एक हैं. Okay, Jesus completely identifies with his people. यीशु अपने लोगों के साथ अपनी पहचान एक कर चुके हैं. Okay, Jesus, let me say that again. मैं ऐसा कहूँगा. Jesus completely identifies with his people. यीशु पूरी तरह से अपने
लोगों के साथ अपनी पहचान एक कर Any चुके हैं। attack on church is attack on Jesus. कलीसिया पर कोई भी हमला प्रभु यीशु मसीह पर हमला है। That's the doctrine of this amazing union between Christ the head and church the body. और ये है उसका अर्थ जो ये ईश्वरीय शिक्षा है कि मसीह सर है और कलीसिया उसकी देह है। Okay? All right. So this ये जो आयत है ये हमें ये सोचने में मजबूर करे आज. I think this should fundamentally change how we view and treat other fellow believers. This should help us change the way we see, हम देखते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं साथी विश्वासियों के साथ। When we love, serve and encourage our fellow believers, we are doing it to Jesus. जब हम प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं अपने साथी विश्वासियों का, तो In हम the प्रभु same यीशु way, के साथ when वो we करते हैं। curse, when we slander, when we divide the body, we are doing it to Jesus. ठीक वैसे जब हम श्राप देते हैं, जब हम बुरा भला कहते हैं, हम आलोचना करते हैं मसीह की देह की, तो हम मसीह की आलोचना करते हैं। Hear this. इसीलिए जो लोग कहते हैं मैं केवल यीशु को मानता हूं, मैं केवल यीशु की सुनता हूं, no, no, no. The way you treat your brothers is the way you treat Jesus. Is as simple as that. So the people that say I only believe in Jesus, so जैसा व्यवहार आप एक दूसरे से करते हैं वही आप प्रभु यीशु के साथ करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है वो व्यक्ति जो कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से नफरत करता है वो झूठा है, क्योंकि जिस भाई को आप देख सकते हो अगर आप उससे प्रेम नहीं कर सकते तो वो परमेश्वर जो अनदेखा है आप उससे भी प्यार नहीं करते। यूहन्ना की पत्री में लिखा है। So the letter of John, it says that if you hate the brother whom you can see but you say you love God, you're a liar. If you cannot love the brother you can see, how can you love God whom you do not see? Okay, let's go further. Acts 9 verse 5, उसने पूछा यानी शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उस नगर में आ और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। And he said, who are you, O Lord? Saul asked, who are you, O Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. Okay? ये जो टर्म है इट इज हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द गोट्स, ये कई ट्रांसलेशन में नहीं है, इसीलिए हिंदी में भी नहीं लिखा। The thing that Jesus says here, is it hard for you to kick against the goads, is not in many translations including Hindi. इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? गोड्स एक छड़ी होती है, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखती है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आपको दिख रही है तो। वो एक ऐसा नुकीला डंडा होता है जिसमें ऐसे हुक निकला होता है, ऐसे हुक। ये जो ऑक्स होता था, जो जिद्दी ऑक्स होता था उसके पीछे लगाया जाता था क्योंकि वो लात मारते हैं जानवर। आपने देखा जो जानवर, जो जंगली जानवर लात मारता है पीछे, तो ये पीछे उनके खड़ा कर दिया जाता। जब भी वो लात मारता था ये चुभता था उसके पाँव में, और जितनी वो लातें मारता था उतना ज़्यादा उससे खून निकलता था और वो अपने आप को लहूलुहान करता था। So when training oxes, they would put a stick with a hook behind the ox so that when it kicks them, it would pinch them, and this was a way of training them. Okay, all right. So because Saul is a Pharisee, as I said, they used to believe in supernatural. Saul understood that this is not an ordinary being, but he used the word kyrios. Kyrios is used for Yahweh in the Old Testament. क्योंकि शाऊल एक फरीसी था और फरीसी अलौकिक को मानते थे, इसीलिए वो ये समझ गया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसने खिरियोस शब्द का इस्तेमाल किया जो यहोवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, किसी भाई ने पूछा कि कैसे पता चला उसको कि ये प्रभु है? तो जब आपका कोई सुपरनैचुरल एनकाउंटर होगा आपको पवित्र आत्मा उस समय में वो भी प्रकट कर देगा। When you have a supernatural encounter, the Holy Spirit will reveal it to you. जैसे हम देखते हैं जब एलाइजा और मूसा प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट हुए और पतरस ने देखा, पतरस और यूहन्ना और याकूब ने, कि यीशु उनसे बात कर रहा है। पतरस मूसा के समय में नहीं था, ना पतरस एलाइजा के समय में नहीं था। तो मेरा सवाल यह है, पतरस को कैसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह से एलाइजा और मूसा बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा, हे प्रभु हम 3 वेदियां यहाँ बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक एलाइजा के लिए, एक मूसा के लिए। तो जब एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस होता है तो एक सुपरनैचुरल नोइंग भी परमेश्वर आपके अंदर डालता है कि आपको पता लग जाए।
when Jesus was on the Mount of Transfiguration with Peter, John, and James, and Moses and Elijah came to speak to Jesus, how did Peter know that it was Moses and Elijah? Because he said, I'll make 3 altars for each one of you. Because when you have a supernatural encounter, the Holy Spirit also reveals to you what is happening in an encounter. Okay. Now hear this. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? So, परंतु उसने उठकर उसने भयभीत होते हुए कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? Okay. Lord, what do you want me to do? प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? Okay. And the Lord said, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. तब प्रभु ने उससे कहा कि उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा. Okay. Think about this. Jesus didn't tell Saul, hey Saul, I'm going to make you this great apostle. यीशु ने सॉल से ये नहीं कहा कि मैं तुझे एक महान अपोस्टल बनाऊंगा. You are going to write 2/3 of the New Testament. तू नए नियम का 2/3 लिखेगा. You know, I'll make you great. मैं तुझे महान बनाऊंगा. Okay, no. नहीं. There was the command that he received was simple and immediate. There was no great revelation in it. जो आज्ञा उसको मिली वो साधारण और तुरंत करने वाली थी. कोई बड़ा प्रकाशन नहीं था उसमें. Okay. That tells us that the journey with God always starts with small steps of obedience. Amen. इससे हमें मालूम होता है कि परमेश्वर के साथ की जो यात्रा है वो हमेशा शुरू होती है छोटे-छोटे आज्ञाकारिता के कदमों से. छोटे-छोटे आज्ञाकारी के कदमों से, right? Right? God often directs us one step at a time. इब्राहिम को क्या बोला परमेश्वर ने? बाद में इब्राहिम को बोला मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा. मैं तुझे सबसे पहली आज्ञा क्या? इब्राहिम अपने पिता के घर को छोड़ उस जगह जा जाओ मैं तेरे को दिखाऊंगा. Later on God spoke to Abraham and said I will make you a father of nations, but initially when God called him out he said step out of your father's house and go to the land I'll show you. Okay, so we see that Lord tells Saul to first obey a simple instruction that is given to him. तो हम देखते हैं शुरुआत में परमेश्वर शाऊल को एक साधारण सी आज्ञा को मानने को कहता है. Arise and go into the city. तू नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे वहां कहा जाएगा. अभी नहीं बताऊंगा. जब तक तू इस आज्ञा को नहीं मानेगा दूसरा निर्देश नहीं आएगा. और कितने ऐसे लोग हैं जो एक जगह रुके हुए हैं और कह रहे परमेश्वर हमसे क्यों बात नहीं कर रहा? क्योंकि जो पिछला निर्देश है वो अभी पूरा नहीं हुआ है आगे. Amen. There are many people who are saying why is God not talking to us because he has already given you an instruction. The last instruction he gave to you you have not completed yet. Okay. All right, let's go further. आगे चलते हैं. जो मनुष्य उसके साथ थे वो अवाक रह गए, मतलब स्पीचलेस रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे. The men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but not seeing anyone. Okay, this also tells us that it's not a private hallucination. Okay, ये प्राइवेट रेवलेशन नहीं है जो किसी को अकेले किसी गुफा में मिला. Paul has people around him. This is not a private revelation or hallucination that someone had. Paul had this experience around people. Okay. आगे हम देखते हैं Acts 22 में जब पॉल ये बात बताता है तो वो कहता है कि मेरे कंपेनियंस ने लाइट देखी मगर आवाज सुनी तो सही मगर उन्हें आवाज समझ में नहीं आई. And when Paul describes this later on in Acts 22, he tells that the people that journeyed with me, they saw a great light, but they heard a voice, but they did not understand it. Okay. जैसे परमेश्वर ने जब बात करी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये मेरा प्रिय पुत्र है तो बाइबल कहती है औरों ने क्या सुना? औरों ने आकाशवाणी सुनी. As the Bible says that the heaven opened and the Father spoke about Jesus, this is my beloved Son in whom I am well pleased. The others heard some sound from heaven. Okay. तब शाऊल भूमि पर से उठा परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क ले गए. वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one, but they laid him and by the hand and brought him into Damascus. And he was there 3 days without sight, and neither ate nor drank. Okay. जब शाऊल उठा तो देखा उसने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ नहीं दिखता. When Saul got up, he opened his eyes, he could not see anything.
Saul's physical blindness is a powerful metaphor for his spiritual blindness. शाऊल का शारीरिक अंधा हो जाना या अंधापन एक एक अद्भुत रीति से दर्शाता है कि वो आत्मा में अंधा था. Okay? He thought he knows the truth. He sees the truth with perfect clarity. उसको लगता था कि वो सत्य को जानता है और सिद्धता से सत्य को देखता है. But in fact, he was in complete dark. लेकिन असल में वो पूरी तरह अंधकार में था. Actually, this act of God was a mercy of God for Saul. और असल में परमेश्वर का जो ये काम था ये दया थी साउल के ऊपर. Okay? Because this physical blindness stopped his mission to ravage the church, and this physical blindness forced him into a period of quiet reflection. क्योंकि इस शारीरिक अंधेपन ने उसको जबरदस्ती उसको एक ऐसे स्थान में भेज दिया, एक ऐसी जगह में जहां वो परमेश्वर को जान सका, उसके आत्मिक अज्ञानता से उसको निकाल सका. Okay? हम इसके बाद देखते हैं. And he was 3 days without sight. ना तो उसको कुछ दिखा. Neither ate nor drank. 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं. Okay? We see that in the Bible 3 days fast, जैसे एस्तर ने किया, it shows a sign of extreme mourning or repentance or spiritual times of seeking God. हम देखते हैं एस्थर का जो उपवास था 3 दिन का उपवास बिना खाए पिए, वो विलाप करने का या परमेश्वर को खोजने का वो समय था. Okay? हम ये भी देखते हैं कि जोना उस मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा. We also saw Jonah in the belly of the fish for 3 days 3 nights. Okay? और अगर हम प्रोफेटिकली इसको देखें तो ये ऐसा है जैसे सॉल जो फरीसी था वो इस 3 दिन में he was stripped of his pride and self-righteousness. And if we see it spiritually, then Saul the Pharisee was stripped off of his pride. उसके घमंड, उसके सारे अहम से उसको साफ कर दिया गया. Okay? When what he saw was taken away and he came to a place of humility, then he could really see what truth is like. Amen. जब जो वो देखता था वो उससे हटा दिया गया और वो एक नम्रता के स्थान पर पहुंच गया, तब वो असल में देख सका कि असलियत क्या है. Okay? And I believe जो true and lasting transformation है, we should have those moments in our life wherein we stop and we ponder. Amen. अगर हम हमेशा सोचते रहेंगे जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, नहीं, हमारी लाइफ में वो रिफ्लेक्शंस होने चाहिए जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और हम प्रभु को कहें, प्रभु अगर मैं जो कर रहा हूँ, प्रभु अगर वो सही नहीं है, आप मुझसे बात करें, आप मुझे बताएं. और वो सच्चे और जीवन भर बने रहने वाले जो बदलाव हमारे अंदर, रूपांतरण हमारे अंदर आते हैं, वो तब आते हैं जब हम ठहरते हैं और सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं. अगर हम सोचते हैं whatever I'm doing is right, then we never come to the place of transformation. But when we come before the Lord and we come to Him in a place where what are we doing and is it right in His eyes or not, then we have a chance for transformation. Okay? So अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि 3 दिन से साउल ने ना तो खाना खाया और ना पानी पिया है. So for 3 days Saul has not eaten, neither has he ना उसे दिख रहा है. neither can he see. Okay? So his sight is taken away. उसकी दृष्टि चली गई है, His hunger is gone. उसकी His भूख प्यास thirst चली is गई gone. है, Okay? Because he has seen the glory of God. क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को All right. देखा है. दमिश्क में हनन्या नामक एक चेला था, Ananias, right? We saw one more Ananias, which the Bible says a certain man, Ananias. Here it says Ananias, a disciple. Ananias नाम एक चेला था. उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या. उसने कहा, हे प्रभु. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said in a vision, Ananias, and he said, here I am, Lord. Okay. Now जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो एनानियस है इसका एक डीप रिलेशनशिप प्रभु के साथ है, बिकॉज ही इज नॉट एस्टोनिश्ड, ही इज नॉट सरप्राइज्ड, इट जस्ट फील्स लाइक दैट ही टॉक्स टू द लॉर्ड. Now we see that Ananias has a deep relationship, उसका प्रभु के साथ गहरा रिश्ता है. जब प्रभु ने उसको बुलाया तो वो हे हनन्या, हाँ प्रभु. Ananias, yes Lord, here I am. Okay, now you have to understand, visions were
common and accepted means of communication in the early church. आपको समझना है पहले की कलीसिया में दर्शन एक सामान्य और एक ग्रहण योग्य बात थी पहले की कलीसिया में. The prophecy of Joel 2. योएल नबी मैं अपनी अध्याय आत्मा की सब पर भविष्यवाणी. उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. I will pour out my spirit on all flesh and your young men will see visions. ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं हम 11-12 में. तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक सॉल ऑफ टार्टस, ओके लेट मी से दिस, तर्तुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए. So the Lord said, arise and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he is praying, and in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. Think about this. God gives Ananias remarkable set of revelation and details. परमेश्वर हनन्याह को एक अद्भुत चौंकाने वाली ऐसे सड़क detail का बता नाम, रहे हैं. सड़क, घर के मालिक का नाम, the owner of the जो house, बंदा घर के अंदर है उसका नाम, the guy who's in the house, और वो क्या कर रहा है. and what he is doing. ओके, गो टू द स्ट्रीट स्ट्रेट, उस सड़क में जा जो सीधी कहलाती है. जूडस के घर में जा, जूडस के घर में एक सॉल है टार्सस का, वो अभी प्रार्थना कर रहा है. So go to the street called Straight, inquire at the house of Judas. There's a man named Saul from Tarsus, and he's praying right now. ओके, नाउ आगे हम चलते हैं. ओके, इन अ विजन ही हैड अप फॉर behold, and in a vision he has seen a man named Ananias coming in, putting his hand on him so that he might receive his sight. और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से वो दृष्टि पाए. प्रभु यहाँ दर्शन में अनानियस से बात कर रहा है, हनन्याह से बात कर रहा है God is कि talking तुझे to- साउल के पास जाना है, साउल के ऊपर तू हाथ रखेगा तो अपनी दृष्टि पाएगा. Yeah. और वहां परमेश्वर साउल से बात कर रहा है दर्शन देकर कि अनानिया नाम का एक व्यक्ति आ रहा है, वो तेरे ऊपर हाथ रखेगा और तुझे दृष्टि मिलेगी. Amen. Here the Lord is talking to Ananias and telling him that you will go there, lay your hands on Saul, and he will receive his sight. And there, the Lord is talking to Saul and saying in a vision that Ananias would come and lay hands on you, and you will receive your sight. Okay, that's the beauty about our God. ये खूबसूरती है हमारे प्रभु की. सोचो, अगर बात कर रहा हूँ, मैं पास्टर सामर्थ से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं किसी और से बात नहीं कर रहा उस समय. Imagine if I'm Because I'm talking to him. to one person, I'm talking to them, not to anyone else. But that's not so with our God. लेकिन हमारे परमेश्वर के पास ऐसा He नहीं है. can talk to 7 billion people simultaneously, and every person give a separate revelation to people, and you will feel I am the only one whom God is talking with. वो एक समय पर 7 बिलियन लोगों से पृथ्वी पर बात कर रहा हो सकता है और आप में से हर एक और हमें से हर एक को लगेगा कि सिर्फ मुझसे ही इस समय वो बात कर रहा है. And not only that, Jesus can simultaneously now appear to 7 billion people and give them a separate vision, a separate revelation. और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु 7 बिलियन लोगों को सामने एक साथ उन सब का आमना सामना करके उन सबको एक अलग दर्शन, एक अलग निर्देश दे सकते हैं. Because he's omnipresent. क्योंकि वो सर्वव्यापी है. That's his beauty. ये उसकी खूबसूरती है. All right? Okay, आगे चलते हैं. हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है, और यहाँ के लिए भी कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem, and here he has authority from the chief priests to bind all who call on your name. Okay, now जो अनानियस बोल रहा है वो रिपोर्ट एक्यूरेट है. What Ananias is saying, the report is accurate. But I love Ananias, his relationship with the Lord. लेकिन उसका जो रिश्ता है प्रभु के साथ मुझे बहुत प्यारा लगता Okay, है. it's only those people who have intimacy talks to Lord like this. केवल वो लोग जिनका एक गहरा रिश्ता प्रभु के साथ है वही ऐसे बात करते हैं. Okay, वो कह रहा है प्रभु. He's Now saying, he's sharing Lord, his heart. वो अपना दिल बता रहा It doesn't mean he doesn't obey. He ये नहीं कि doesn't वो want to करना obey. नहीं चाहता.
वो कह रहा है प्रभु मैंने ये सुना इस व्यक्ति, लाइक इट्स लाइक टू फ्रेंड्स टॉकिंग. He's saying, Lord, this is what I have heard about this guy. जो जैसे दो दोस्त बात करते हैं. Lord, I've heard from many people about this man, how मैंने much harm he has done. बहुत से लोगों से इस व्यक्ति के बारे में सुना है कितना नुकसान इसने किया. And here he has the authority from chief priest to bind all who call on your name. और प्रधान याजकों से वो अधिकार लेके आया कि तेरा नाम लेने वाले सबको बांध दे. अब देखो प्रभु ने उससे क्या कहा. Now see what the Lord told him. परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है. ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं. For the Lord said to him, Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel, for I will show in him. Let's talk about this. Okay, he is a chosen vessel. That's very good translation. वो एक चुना हुआ पात्र है. You know, it comes from the Greek word skios. And इसका मतलब यही होता है एक पात्र. परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरा it reveals divine election. ये अलौकिक चुनाव को दर्शाता है. Okay, God in His sovereignty chooses individuals for His purpose, independent of their actions. परमेश्वर अपनी स्वेच्छा से कुछ लोगों को निर्धारित करता है अपने मकसदों के, अपने कामों के लिए, उनके एक्शंस के विपरीत. Okay, but that does not mean पर इसका कि ये अर्थ प्रभु नहीं ने है कंट्रोल करता है. Because Lord Bible controls says them. many elect will be deceived. क्योंकि बाइबल कहती है बहुत से चुने हुए लोग भी धोखा खाएंगे. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने रिमोट कंट्रोल कर रहा है, बट पहले से प्रभु ने पृथ्वी की नींव रखे जाने से पहले से परमेश्वर ने कुछ लोगों को, चुने हुए पात्रों को निर्धारित कर दिया था. इसके द्वारा ये इस काम के लिए मैंने इसको अलग किया है. Doesn't mean the Lord is controlling them, but before the foundation of the earth, the Lord elected some that this is the work I have ordained for this person. Okay, now क्यों चुना है मैंने इसको? Why have I chosen To him? bear my name before Gentiles. अन्य जातियों के सामने मेरे नाम को उठाने के लिए. Okay, जो गैर यहूदी लोग हैं, मैंने इसको इसलिए चुना है कि ये मेरा नाम गैर यहूदियों के सामने प्रकट I करेगा. have chosen him to bear To my name before kings. Gentiles. राजाओं के सामने. Okay, और हम देखते हैं कि कैसे पौलुस, फेलिक्स, फेस्टस, किंग एग्रिपा इन सब के सामने खड़ा हुआ. And we see how Paul went और before आखिरी में Felix, जो Festus, उसका King ट्रायल Agrippa. हुआ सीजर के सामने रोम में. And at the end, before Caesar, he had a trial. एंड चिल्ड्रन ऑफ इजराइल. और इजरायलियों के बच्चों के सामने. ओके, सो अन्य जातियों के सामने, Before the Gentiles. राजाओं के सामने, Before kings. एंड अन्य जेंटाइल्स के सामने, अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने और इजराइलाइट्स के सामने. Before the Gentiles, the kings and the children of Israel. नाउ कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु ये क्या बात है, आपने उस व्यक्ति को चुना है. Some people say, oh, Lord, what is आपने- this? You chosen that person? हाँ, अब आगे भी पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा. उसका एक कॉस्ट भी है. There's a cost to it. वो कॉस्ट लोग नहीं समझते. The cost people don't understand. ओके, लोग कहते हैं मैं पौलुस की तरह सेवा करना चाहता हूँ. People say, I want to serve like Paul. रियली, सच में I want to ask you, do you want to serve like Paul? मैं पूछना चाहता हूँ, सच में Paul Do की you तरह have सेवा करना any चाहते हो? idea the sufferings that he went through? आपको कोई अंदाजा है क्या सताव उसने सहा? Okay, वो मेरा चुना हुआ पात्र है. क्यों He आगे? is For my I chosen will vessel. show him how many things he must suffer for my name's sake. क्योंकि मैं उसको बताऊंगा कि वो मेरे नाम के कारण कितनी बातें सहेगा. Let me tell you a profound spiritual principle many people don't understand in the church today. बहुत से लोग आज कलीसिया में इस सिद्धांत को नहीं समझते. मैं आपको बताना चाहता हूँ. Those who are chosen for a great service often face great suffering and persecution. वो जो महान सेवा के लिए चुने गए हैं अक्सर महान सताव का सामना करते हैं. Okay, it comes at a cost. Not that God demands that cost from you. एक दाम के साथ आता है. ये नहीं कि परमेश्वर वो दाम चाहता है आपसे. Okay, बट जब परमेश्वर आपको उस लेवल की सेवकाई देता है तो उस लेवल की सेवकाई या उस लेवल का काम जो है, उस लेवल का सताव भी अट्रैक्ट करता है, उस लेवल की एक सफरिंग भी अट्रैक्ट करता है. But when God gives you that level of work, it also attracts that level of suffering. Okay. Now, when I'm talking about suffering, I'm not talking about being sick. I'm talking about people are going to hate you. People are going to plot things against you. Okay. Yeah. आज भी जो सेवकाई हिंदुस्तान में इम्पैक्ट कर रही हैं, आपको पीछे आइडिया भी नहीं है कि कैसे कैसे उन्हें सताव, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पीछे
मसीह लोग हों, दूसरे पास्टर, कैसा सताव होके जा सकते, और वो कभी पुलपिट से बोल भी नहीं सकते. मैं कभी पुलपिट से उस बात को नहीं कह सकता आपके सामने. You have But when you are called for a great work, you also go through great persecution. you have no idea the kind of suffering, the kind of persecution that people of God go through when they are called, when they have been elected for a purpose. The kind of persecution from the government, from police, from other Christians, other pastors. You have no idea. This cannot even be spoken about in front of people. Okay? Sometimes people only see the lights, the crowd. Okay? They sometimes don't see the cost. कई बार लोगों को सिर्फ लाइट दिखती है, स्टेज की भीड़ दिखती है, लेकिन उनको दाम नहीं दिखता जो चुकाया गया उसके लिए. Okay? So जिस काम हमारी सक्सेस किस में, इस बात को सुनिए. कंपेयर ये नहीं है कि प्रभु तूने उसको ज़्यादा चुना, नहीं. प्रभु, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा किसी को 10 तोड़े दिए गए, किसी को 5, किसी को 1. तो जिस हिसाब से हमें मिला है उसी हिसाब से वो हमसे एक्सपेक्ट भी करता है. जिसको 1 तोड़ा दिया गया उससे 20 तोड़े नहीं मांगता वो. और जिससे 10 दिए गए उससे 5 नहीं मांगता. जो 10 था उसने 20 बनाया, जो 5 था उसने 10 बनाया. यानी जिसके पास 1 था उसको केवल 1 और बनाना था, और उतना ही बड़ा इसका भी पुरस्कार होता जितना 20 वाले का था. सो योर फेथफुलनेस इज नॉट इन हमारी विश्वास योग्यता या हमारी मिनिस्ट्री की सक्सेस इसमें नहीं कि मैं एक बड़ी भीड़ के पीछे भागूं या मैं देखूं दूसरे लोग क्या करें. जो काम परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है मैं उसमें वफादार रहूं, उसमें विश्वास योग्य रहूं. To some he gave 1 talent, to some he gave 2, to some 5, and the one with 5 made 10, the one with 2 made 2 more, and the one, but his reward is not based on what they have done. The one also had to do 1 more. It's not based on what they are doing, but how what they have been given. Are they faithful in what they have been entrusted? Okay, he's a chosen vessel, वो एक चुनावा पात्र or है, he will suffer for my name's sake. पर वो मेरे नाम के कारण बड़े दुख सहेगा. Jesus said, if they have hated me, they are going to hate you. यीशु ने कहा उन्होंने मुझसे नफरत की, तुमसे भी करेंगे. बाइबल बताती है जो 12 apostles यीशु मसीह के थे, the apostles of the Lamb, उनकी तरह कोई नहीं है. The Bible tells us there's no one The like the authority and the Lamb. rank of those apostles, वो जो अधिकार और जो रैंक उनको दिया वो गया, बिल्कुल अलग है. that is separate. But think about that. All of them were martyred पर except Apostle John. वो सब शहीद किए गए प्रेरित यूहन्ना के अलावा. They paid a great price. उन्होंने बड़ा दाम चुकाया है. But praise God पर प्रभु कि का जब धन्यवाद हो. परमेश्वर किसी को बुलाता है तो उसको अनुग्रह भी देता है That उसके when लिए. God calls someone, He gives them grace. Okay? But so many times what I'm saying is people see things from the outside, they don't understand what a true ministry is. पर बहुत बार लोग बाहर से चीजें देखते हैं, समझते नहीं सच्ची सेवकाई क्या है. Okay? So anyway, चलिए इसको आज हम यहीं आगे चलते हैं. तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर यानी शाऊल पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. And Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Okay. मैं इसीलिए आप सबसे सारे भाई बहन जो देख रहे हैं, आप जिस भी चर्च में जाते हैं, Whatever church I you would go say, to, आपका ज़रूर काम है अपने पास्टर के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि शैतान लगातार कोशिश करता है कि कैसे, अगर एक भेड़ों के साथ एक चरवाहा है और अगर उस चरवाहे को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, अगर उसको मार दिया जाए तो फिर भेड़ें तितर बितर आराम से हो जाएंगी और भेड़िए आके उसको खा लेंगे. इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर अपने पूरे दिन की प्रार्थना में जो भी आप प्रार्थना करते हो, चाहे आप 5 मिनट चाहे 10 मिनट पूरे हृदय से अपने अगुओं के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करें. So this is what I want to say to all my brothers and sisters who are hearing me. No matter what church you go to, make sure you take out time every day to pray for your pastors and your leaders, because the devil is trying hard to come against the shepherds, because he knows if he strikes down a shepherd, it's very easy to scatter the sheep, and the wolf can come and devour the sheep if they don't have a shepherd.
Okay. God bless you, those people who do it. जो लोग करते हैं ऐसा, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे. Okay. Okay. So सबसे पहले हम यहाँ पे अब अनानियस की लैंग्वेज देखते हैं साउल के लिए. अभी तक वो कह रहा है ये जो व्यक्ति, अब वो आके कह रहा है हे भाई शाउल, क्योंकि वो जान गया है ये हमारा भाई है, हमारे परिवार में प्रभु ने इसे ग्रहण किया है. Yeah, the language of Ananias has changed. Earlier he was saying this man Saul, but now he's saying brother Saul because he knows the Lord has accepted him. Okay. Now अब वो एक तरह से कॉन्फर्मेशन दे रहा है शाउल को, या जो पौलुस था, कि कैसे यीशु जो से रास्ते में मिला, जो दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है. In a way, he's giving a confirmation to him that how Jesus, whom you saw on the way, has sent me. और दो काम के लिए वो भेजा गया है. And he sent for two things. Okay, Lord Jesus who appeared to you has sent me. वो प्रभु यीशु जो तुम्हें रास्ते में मिले, उन्होंने मुझे भेजा है. Has sent me that you may receive your sight कि तुम अपनी दृष्टि को पाओ and be filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भर जाओ. Okay. All right. So again we see कितना important है एक विश्वासी का पवित्र आत्मा से भरना. We see how important it is for a believer to be filled with the Holy Spirit. Okay. मैंने कल भी आपको बताया था, you have to have desire for that. तो आपको उसकी चाहत रखना जरूरी है. Okay. All right. आगे. और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया. Immediately there fell from his eyes something like scales. Then he received his sight at once, and he arose and was baptized, and he received food and was strengthened. जैसे अनानियस ने उस पर प्रार्थना करी, The moment Ananias उसकी prayed for आंखों से him, छिलके गिरे और वह Scales fell. देखने लगा. he started to see. अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको Now चाहता हूँ, मैं आपका hear ध्यान एक carefully. जगह ले जाना चाहता हूँ. पौलुस ने 3 दिन से खाना नहीं खाया और Paul- ना पानी पिया है. Paul has not eaten or अब drank वो for 3 देखने days. लगा. Now he started to see. मगर जब वो देखने लगा But when he starts to तो see, सबसे पहले वो किचन में नहीं भागा रोटी खाने. firstly he did not run to the kitchen to eat उसने food. बपतिस्मा लिया. He got baptized. सबसे पहली चीज जो very पौलुस ने first करी thing. जब उसकी आंखें खुली, उसने, हम पूरे प्रेतों के कार्य में क्या देखते हैं Come on. कि बपतिस्मा कितना जरूरी है सुसमाचार में. The very first thing he did as soon as he received his sight is he got baptized. We see in the whole book of Acts उसने उठकर how important बपतिस्मा लिया, baptism is. फिर भोजन करके बल पाया. फिर भोजन किया. पहले बपतिस्मा लिया, फिर भोजन किया. Come on, look After- at the importance that the early church gave to baptism. After he was baptized, then he received food and was strengthened. कितना महत्वपूर्ण पहले की कलीसिया बपतिस्मा को दर्शाती है इसमें. Okay, Sister Lisa, don't you think Paul has repented? बहन लीसा, आपको लगता नहीं I have कि पॉल told ने you मन guys, फिराया? repentance is not crying sorry. Repentance मन फिराना, वो Repentance रोना is the change of नहीं your है. heart. वो आपके मन का बदलना है. If Saul was not changed, he would have not obeyed the instructions of the Lord. अगर सॉल बदला ना होता तो उसने प्रभु की बात मानी ना होती. He had repented. उसने मन He फिराया. is praying for 3 days वो 3 दिन से प्रार्थना कर because रहा था. Jesus said he is praying. यीशु ने कहा वो प्रार्थना वो कर रहा 3 दिन लगातार प्रार्थना कर रहा है. For 3 एक days सॉरी he was बोलना तो छोड़ो, वो तीनों दिन प्रार्थना में है. था. Not saying sorry once, he was praying 3 days. Okay, and now Jesus spoke to him. और अब यीशु ने उससे बात किया. All right, okay. So फिर भोजन करके बल पाया. Then he received food and was For strengthened. several days he was with disciples who were in Damascus, and immediately he began to preach Jesus in the synagogue, saying he is the Son of God. और कई दिन तक वो दमिश्क में चेलों के साथ रहा और उसके बाद वो आराधनालय में जाकर के मसीह का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है. Isn't that beautiful that Saul the persecutor is now in fellowship Amen. with the very same people he wanted to kill and destroy? क्या एक खूबसूरत बात नहीं है कि शाऊल जो सताने वाला था अब उन्हीं लोगों की संगति में भाईचारे में रह रहा है जिनको वो नाश करने के लिए निकला था. This also shows the importance of community, ये- of gathering together with. उसने नहीं कहा जीसस मेरे को अब मैं और यीशु मसीह, यीशु ने मुझे दर्शन दिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं और यीशु मसीह. No, that's not what he did. ये दर्शाता है कि भाइयों की संगति में होना, विश्वासियों की संगति में होना कितना महत्वपूर्ण है. उसको यीशु ने दर्शन दिया, उसने ये नहीं कहा मी एंड जीसस, जस्ट मी एंड जीसस. नो, ही वाज इन द फेलोशिप ऑफ द सेंट्स. Okay, this was a powerful demonstration of his transformation. ये एक शक्तिशाली दर्शाता है शक्तिशाली रूप से उसके बदलाव के बारे में. Okay, और 20वीं आयत में हम देखते हैं वह तुरंत आराधनालय. Now Saul is not ashamed, neither is he afraid.
एक चीज जो हम यहाँ पे कई बार बाइबल जब जल्दी से पढ़ेंगे हम ये मिस कर देंगे, वो बिल्कुल भी इमेज कॉन्शियस नहीं है। Amen. कई Shaul, लोग इतने इमेज कॉन्शियस होते हैं, अरे मेरे को तो सारे लोग जानते रहे, मैं तो गमीलियल के अंदर पढ़ के आया। कई लोग कहते हैं चर्च में हम आएंगे किसी को मत बताना। पॉल को कोई फर्क नहीं, उसको जब प्रभु मिल गया वो कह रहा है तुम्हें जो बोलना है मेरे बारे में बोलो, मैं तो अब आराधनालय में जाके बोलूंगा कि मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही खुदा है। वो ओपनली बोल रहा है, अब ओपनली प्रचार कर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। ना तो शाउल शर्मिंदा था, ना ही वो घबराया हुआ था. He was not image conscious. As soon as he received the Lord Jesus, he went into the synagogue and started to preach. He was not afraid that what will people think about me, what will they say about me, that he's a student of Gamaliel. But he went boldly and started to preach Christ, telling them that he's the Son of God. ओके हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि सी पॉल वाज जेलस। पौलुस जलन रखता था. Okay, Paul was jealous, but he lacked understanding, God's understanding. पौलुस जलन तो रखता था, लेकिन परमेश्वर की समझ उसके पास नहीं थी. Okay, and it's a reminder to us, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी spiritual zeal में हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करें, सोच के कि हम उन लोगों पर अटैक करें जो यीशु का कार्य कर रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं, पर क्योंकि हमारी नज़र में वो गलत हैं हम उनको ओपन अटैक करें, जबकि ऐसा करके हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी ज़ील में अंधे हो चुके हैं, क्योंकि हमें लगता है वो गलत है. And this is a lesson for us, that in our zeal we may not attack those whom, because we are zealous for God, we may not attack those who are serving Him because we think they are wrong. ओके इसीलिए आज तक इस सेवकाई में 12 साल से मैं जब प्रचार कर रहा हूँ, आज तक हमने कभी भी किसी परमेश्वर के दास का नाम लेकर उनकी कभी निंदा ना कभी करी है, ना कभी करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सर है और वो जानता है कौन सच्ची सेवा कर रहा है, कौन सच्ची सेवा नहीं कर रहा है, और एक समय है जब वो वापस आ रहा है और बाइबल कहती है कुछ भी छुपाना रहेगा. And this is why in 12 years we have never criticized any man of God, calling out their name, criticizing their ministry, because Jesus Christ is the head of the church and He's coming back and He knows who has done true ministry and who's not. कहीं ऐसा ना हो कि अपनी अपनी ज़ील में हम उन लोगों के विरोध में कार्य करें जो मसीह का कार्य कर रहे हैं, जो सच में प्रभु का कार्य कर रहे हैं, और ऐसा करके हम यीशु को परसिक्यूट करें, यीशु को दुख पहुंचाएं. There may not be so that in our zeal we would come against those who are truly serving the Lord, that by doing this in our zeal we would hurt the Lord. Okay. हालेलुया. सो आज हम 20 आयत तक ही देखेंगे. ओके एक्ट्स की ये हमारी जर्नी अच्छी है, अच्छी रही है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी हम लोग इस पे चल सकते हैं. And I pray that we can go in this further in the future also. Okay. I wanted to show you something. Just give me a second. ओके सो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या पॉल सिंसियर था? I'll ask you a question. Was Paul sincere? Was Paul sincere? He was 100% sincere. वो 100% sincere था. सॉल जब वो पहले, मैं कह रहा हूँ मसीह में आने से पहले, क्या वो सिंसियर था? He was 100% sincere, but he was 100% wrong. Before coming to Christ, वो 100% sincere था, ईमानदार था, लेकिन वो 100% गलत था. A person can be 100% sincere and 100% wrong. Just because somebody is sincere doesn't mean that they are right. सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति ईमानदार है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत नहीं हो सकता. आज मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो बहुत उपवास कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, मगर वहीं पे बहुत सारे लोगों, परमेश्वर के लोगों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं. Just because they are sincere doesn't mean they are right. We see many people are fasting and praying, but they are speaking evil against other men of God. सिर्फ इसलिए कि वो sincere हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि वो सही हैं. सुजाता नंदा बहन wrong how? Okay. आपने थी आप हमारे साथ एक्ट्स की स्टडी में. He was murdering
the Christians. Do you think it was right or was it wrong? वो मसीहों की हत्या कर रहा था, सही था कि गलत था? वो सोच रहा था मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ ऐसे He करके। was thinking he was आज serving कई God. लोग YouTube में जाकर सारे, मैं कई बार देखता हूँ कि वो परमेश्वर, वो पिता लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को दे दिया, हाँ, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीनकरण अंकल हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु को दिया, प्रभु के लिए जिए, और आज कोई भी मैं देखता हूँ जिसकी कोई सेवकाई नहीं, आज क्या यूट्यूब खोला, माइक ऑन किया और किसी भी परमेश्वर के दास के लिए निंदाजनक बातें बोलने लगे। उनको लगता है कि हम लोग जो हैं बहुत ही ज़ील से भरे हुए हैं और ये व्यक्ति सही नहीं है। मगर जस्ट बिकॉज समबडी इज सिंसियर डजंट मीन दे आर राइट।